जय गुरु जी। प्यारी संगत को प्रणाम। आज पहला नवरात्रा है, सो डे ऑफ ग्रेट ब्लेसिंग्स और अमेजिंग स्वरूप गुरु जी का है। मैंने किसी सत्संग में ऐसा नहीं देखा, दिस स्वरूप फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग। ये लस्सी आंटी का स्वरूप है, ये हमेशा लस्सी आंटी देते हैं। लस्सी आंटी, हाँ, वंडरफुल स्वरूप, फुल ऑफ, वी कॉल इट स्पंद, डिवाइन एनर्जी। बहुत ही मजा आया एंड फुल ब्लेसिंग है, आई कैन अश्योर यू देयर इज फुल ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी। एंड ऑफ कोर्स गंगा आंटी का कमाल है। मैं आई हैव कम मोर देन 2 times, आई थिंक नॉट लेस देन 3 times. 1916 also I came, that Guruji's, that was at Guruji's birthday. Yes, 7th July. So I have come many times and see the greatness का, गंगा आंटी जी का grace किसके अंदर है, divine grace. Guruji has blessed her. It is amazing to organize such a wonderful gathering with love, charm and devotion. So congratulations to Ganga aunty. Now, in fact, we have come here in June and we are just within a week or so, we are going back to India. So we also had a very wonderful time, traveled many cities, and besides my programs on meditation, other things. So first we went on Guruji's birthday to Sacramento, this Orange County, Irvine. The Dirja auntie, she hosted our program there. And what happened actually, Guruji के हमेशा miracle होते हैं. We were in the plane where seats were different. That air hostess said, no, you can't sit together, you have to go there. And she told me, no, I will not move. मैंने कहा क्यों नहीं मूव करोगी? बोलो Guruji told me to sit here only. Actually, हाँ. तो मैंने कहा क्या? What can I could not answer her. Immediately the other lady said, oh, you are there, okay, I'll sit that side. So this was the thing. And secondly, what happened, this Dirja auntie said, 7th is the celebration. You had explained, said, but she did a lot of singing that day, celebrations. But here there's a lot of sangat, they want to learn about Guruji's life, Guruji's guidance, Guruji's के बारे में सुनना चाहते सब लोग. तो on 6th हमने बुलाया है at around 6 PM शाम को बुलाया है. जब शाम को बुलाया गुरुजी, जैसे वो जय गुरुजी, now Kazi uncle will start. Suddenly a huge eagle came into their compound. They said it's some royal bald eagle, something America का. मैंने कहा, he just looked at it, he said, यहाँ eagle आती है son. She said first time in 16 years they saw this eagle, and wonderful pictures also available with that. They said Guruji's blessing it was. So till 1 o'clock we were only going with Guruji's satsang. It was a great time, Irvine. Of course, next we had a satsang in Sacramento also. Then with some old satsang in Sangat in San Francisco. And last week also was this very charming Guruji satsang in Atlanta. That uncle, they had organized, since I had come there, that Shiv Mandir had organized, invited me. Those said, let us have satsang. It's very, very charming. Sangat was there, very great time. Now, Ganga auntie said she had not read much of Shiv Puran. शिव क्या है, शक्ति क्या है? कहते शक्ति इज विमर्शनी माता. कहते शिव और शक्ति एक ही है. शिव है स्टैटिक, शक्ति इज डायनेमिक. एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू शक्ति. सो वी कॉल इट द गॉडेस ऑफ एक्सपीरियंस. शक्ति, शिव के पास जाना तो शक्ति के थ्रू ही जाना है आपको. शक्ति आपका हाथ पकड़ के शिव के पास ले जाएगी. तो दैट इज द पावर ऑफ शक्ति. एवरीथिंग इज हैपनिंग ओनली थ्रू शक्ति. शक्ति के बगैर वी कैन नॉट रीच शिव. Now, I want to know what is the greatness of Guruji. Kindly listen. Some of my friends who have read Shiv Puran. शिव पुराण में क्या लिखा है कि भगवान शिव कहते हैं कि जब जब धर्म का हानि होती है, when dharma declines, मैं किसी न किसी को मनुष्य के रूप में भेजता हूं. That was our Guruji. जय गुरुजी. This is a basic thing actually. जब अधर्म बढ़ जाता है तो even in Bhagavad Gita also it is said that यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतारी पुरुष आता हूँ. For a change I will little entertain you. I am from Kashmir, so we are familiar with Urdu language. There is one शायर, उसने इस श्लोक का उर्दू में अनुवाद किया है.
यदा इदा ही धर्मस्य. Remember one word called तनजुल. तनजुल means decline. कहते हैं तनजुल पर जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गरम. अरे ये अंधेरा जब देख पाता हूं मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूं मैं. Now, focusing back on Guruji, I want you to understand the Guruji in a charming way, simple way, हमारे level पर पहुंच के, he was the greatest. क्या था? Why we call him Shiv Avatar? Why we call Guruji as Shiv Avatar? देखिए, again going back to the Shiv Puran, going back to Shiv Puran says Lord Shiva does 5 acts continuously. संसार पंचकृत 5 क्रिया से संसार को चलाता है. उसमें क्या 5 क्रिया क्या है? कहते हैं क्रिएशन, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कहते हैं क्रिएशन, कहते हैं ड्यूटी मैंने ब्रह्मा को दे दी है, और पालन किसको दिया है? विष्णु को दी है, और संहार विड्रॉवल मैंने रुद्र को दी है. फिर शिव 2 क्रियाएं और करता है. एक शिव करता है व्हीलिंग पावर, दैट्स कॉल्ड तिरोधान. शिव छुप जाता है, उससे क्या होता है? हम माया में फंस जाते हैं, ये मेरा तेरा, ये मैं करूंगा, ये मैं हूं. तो ये जो संसारी चक्कर में फंसाने का हम, ये भी महेश को ड्यूटी दी है शिव ने. मगर ये लास्ट ड्यूटी है, दैट इज अनुग्रह, ब्लेसिंग, वो शिव ने अपने पास रखी है. तो गुरुजी क्या बोलते थे? कल्याण कीता. गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस, कल्याण कीता, ऐश करो. सो दैट कैन अंडरस्टैंड, ये अनुग्रह शक्ति गुरुजी के पास थी. जैसे सीधा कैसे शिव अवतार, हम इसीलिए गुरुजी को बोलते हैं. जय गुरुजी अगेन. सो before I tell further about my journey also, but there's a great learning, highly inspiring. जैसे अभी गंगा आंटी ने कहा कि आप बिल्कुल इज ए मेडिटेशन, ये आप करते हो या 1.5 घंटे 2 घंटे की मेडिटेशन करते हो, अटेंशन शुड बी गुरु जी के चरणों में, एंड ऑटोमेटिक गाइडेंस कम्स. कितने ब्यूटीफुल ये सत्संग से कितनी गाइडेंस मिलती है. एंड व्हाट इज अ ग्रेट एडवाइस, ये खाली इंप्लीमेंट करने की बात है. जैसे गुरु जी हम हमेशा बोलते हैं, यू मस्ट, कोई आप किसी की कहीं जाने की जरूरत नहीं, गुरुजी और आप गुरुजी का स्वरूप रखो. सरेंडर टू गुरुजी, हैव कंप्लीट फेथ इन गुरुजी, नो इफ्स एंड बट्स. कैसे हम इफ्स एंड बट्स में फंस जाते हैं जब तक हम पूरा सरेंडर नहीं करते हैं. ये इसी सत्संग की कहानी, सत्संग सुना मैंने जब वाज इन दिल्ली बिफोर आई केम टू अमेरिका. कहते हैं कि सत्संग है कि एक राजा था, भक्ति राजा बोलते थे मथुरा में. बड़ा पवित्र राजा था, सब संतों को पालता था, गरीबों की मदद, प्रजा में सुख शांति, सब खुश थे राजा से. उसको भक्त राजा बोलते थे. कहते एक बार राजा तो हो गया, एज हो गई, उसने अपने विद्वानों को बुलाया, मंत्री को बुलाया, बोला मेरी तो एज हो गई, मैंने तो गुरु धारण नहीं किया है, मैंने गुरु धारण नहीं किया, मुझे गुरु का धारण करना चाहिए. आपकी क्या ओपिनियन है? सो वन ऑफ द very advanced realized, they were some good people. They said the only great saint is संत रविदास जी महाराज, उससे बराबर कोई संत नहीं है. तो उससे वही गुरु धारण करने के लायक. बोला हाँ, सबने कहा उसके बारे में ये ऐसा करता, वैसे बोला वो हाँ यही तो मेरा मुझे लगता गुरु है. सब मिनिस्टर से कहा रहे सर वो ही इज शू मेंडर, इसको आप गुरु धारण करोगे. बोला आई एम इंस्पायर्ड, वही मेरा गुरु है. अब उसे कहा चलो मैं उससे मिलने जाऊंगा. बोला हाँ सब हम अरेंजमेंट करेंगे सब कुछ. बोला मुझे कोई अरेंजमेंट नहीं चाहिए. राजा नंगे पांव गया गुरु संत रविदास जी महाराज के पास, नंगे पांव गया उसके पास. तो रविदास जी महाराज ने कहा अरे राजा तू मेरे पास आया, नंगे पांव आया तू? अरे वाह 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 वाह, कमाल, राजा होकर नंगे पांव मेरे पास आया, मैं बड़ा दिल मेरा खुश हो गया. सो संत रविदास हग राजा, बोला मैं तेरा बिल्कुल कल्याण करूंगा, फुल ब्लेसिंग दूंगा. So what he did, he picked up the water from the tub. जिसे वो कहता पानी के टब, बोला पी राजा, ले राजा, तेरा बिल्कुल कल्याण हो जाएगा. तो राजा तो हैरान हो गया. उसने क्या किया? he just pretended, ऐसे पिया पानी, तो पानी शर्ट के नीचे गिरा दिया पानी, तो किया चरण में छू के चला गया वापस. जब महल में पहुंचा तो राजा की शर्ट थे स्पॉट्स, गंदी थी शर्ट्स. तो इट वॉज गिवन टू द वॉशरमैन, धोबी को दे दी ये शर्ट. तो धोबी ने कहा पर गंदी शर्ट, राजा की तो कभी शर्ट गंदी नहीं होती है. अब वो बेचारे को साफ करने लगा तो परेशान हो गया धोबी. राजा के अपने साफ ही होते थे, वो दाग हटता नहीं है. तो बेटी देख रही थी, बोला पिताजी ये क्या कर रहे हो तुम?
बोला पता नहीं यार, राजा के शर्ट कभी गंदी नहीं होती है, दाग है, हटते नहीं है। बोला राजा पिताजी मैं देखूंगी। सो शी वेंट देयर, शी सक्ड द स्पॉट्स, शी सक्ड द स्पॉट्स, डर्ट, शी सक्ड द स्पॉट्स। वो ब्रह्म ज्ञानी बन गई, बेटी बन गई ब्रह्म ज्ञानी को। संत रविदास महाराज का उसी को लग गया अनुग्रह, वो ब्रह्म ज्ञानी बन गई। तो जबरदस्त तो चर्चा हो गई, अरे धोबी की बेटी ब्रह्म ज्ञानी बन गई। कुछ दिनों के बाद राजा को भी खबर पहुंची कि आपकी धोबी की बेटी ब्रह्मज्ञानी बन गई है। बोला कमाल है, मैं अकेले जाऊंगा मिलने। वो राजा बेटी के पास गया, बोला बेटी तेरे को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, तू कैसे ब्रह्मज्ञानी बन गई? बोला राजा मुझे पता नहीं है, आपकी गंदी कमीज थी, दाग थे, पिताजी परेशान था, तो मैंने उसको सहायता की, सख्त स्पॉट्स, तो पता नहीं मुझे रिवोल्यूशन हो गया। तो राजा ने कहा है गड़बड़ हो गई। सो बाकी संत रविदास महाराज के पास गया, बोला मुझ उसके चरणों में गिर गया, मुझसे गलती हो गई। बोला राजा ऊपर वाले का मर्जी थी तेरे को ब्लेसिंग देने की, मगर तूने ले ली नहीं ली, कोई बात नहीं राजा, तू लगे रहो, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, अपना काम करो, तेरा भी टाइम पर लगा हो जाएगा। तो ये मतलब यही है कि इफ्स एंड बट्स एंड सरेंडर टोटलिटी टू द गुरु, नंबर वन। नाउ अब मैं थोड़ी सी, गुरु जी जर्नी वॉज अ एक्सट्रीमली ग्रेट लर्निंग फॉर मी। तो हमारी पोस्टिंग हुई थी जलंधर में, ईयर वॉज 1989, जलंधर में पोस्टिंग हुई थी। तो आई वॉज रीजनल मैनेजर इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हार्डली 1-2 महीने हो गए, आई सॉ एनवलप मेरे टेबल पर था, लिखा था ब्लेसिंग गुरु जी 300 डिफेंस कॉलोनी। तो हम रहते थे 37 ग्रीन पार्क, हार्डली आधा किलोमीटर दूर था। मैंने कहा पता नहीं कौन सा गुरु जी क्या है, तो कुछ आइडिया नहीं था। मैंने एनवलप खोला, उसमें एक पिक्चर था, खाली पिक्चर। वन साइड था गुरु नानक देव की पिक्चर, अदर साइड वाज शिव जी, लॉर्ड शिवाज पिक्चर एक साइड, एक से गुरु नानक देव महाराज की पिक्चर एक साइड में थी। इतना ही था। तो मैंने कहा चलो वीकेंड में जाएंगे। तो सैटरडे वीकेंड में गया मैं मंदिर, 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर मंदिर। तो गुरुजी को मैंने देखा, गुरुजी थी रेड शर्ट, चकाचक व्हाइट पैंट और रेड शर्ट में गुरुजी बैठे थे। नॉर्मली क्या होता ना, हमारी थोड़ी बैकग्राउंड थी, हम कश्मीर को बिलोंग करते, हमारे पिताजी भी बड़े जज थे, वो भी संत सेवक थे, मस्तान साधु संत हमारे घर आते थे, अलग अलग टाइप के लोग होते थे। वो लंबी कहानियां हैं जो उनको साधु संतों से मेरा भी बड़ा इंटरेक्शन था। मैंने पहचाना, मैंने कहा ये तो कुछ महापुरुष है, ठीक है, ये रेड शर्ट वगैरह में है, इट्स अ मिस्टिक ऑफ वेरी हाई ऑर्डर, दिस गुरु इज अ मिस्टिक ऑफ हाई ऑर्डर। तो वो मुझे बुले शाह का याद आ गया, कहते हैं कि ही डिवेल्स इन ब्लिस, जित पाया बेद कलंदर दा, राख खोजिया अपने अंदर दा, वो वासी है सुख मंदिर दा। सो वी गॉट फैसिनेटेड बाय गुरुजी। फिर जितनी पुरानी संगत को मालूम है गुरुजी क्या, मतलब हम बैठते थे तो स्टील की थाली आती थी, उसमें छोटे छोटे स्टील के कप्स होते थे। देन गुरुजी विल एनर्जाइज, रुद्राक्ष माला से देयर विल बी डिवाइन फ्रेग्रेंस क्रिएट होती थी। फिर हम बैठते थे, कहते ऐसे आ जाओ उठो, देते थे जल प्रसाद। हम बोले यार मेरी बारी कब आएगी, with great curiosity we used to this thing. Actually गुरुजी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई सॉलिड खाना नहीं खाते थे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इनवेरिएबली गुरुजी वुड हैव कहीं ना कहीं डिनर होता था, कोई इन्विटेशन होती थी, जलंधर में, कभी फगवाड़ा में, कभी गुराया, कभी लुधियाना, एंड वी विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द गुरुजी ग्रुप। 1-2 गाड़ियाँ होती थी, तो हमारे बिल्कुल छोटे बच्चे होते थे, हमारी माता जी वुड टेक केयर ऑफ आवर किड्स, तो हमारे गुरुजी के साथ जाना, फिर वो आफ्टर दैट मंदिर में दूध लेना गुरुजी के, फिर देन वी विल कम बैक। इट वाज अ ग्रेट थिंग। गुरुजी का क्या था, चमत्कार भी थे और चारमिंगली चमत्कार होते थे गुरुजी के। जैसे गुरुजी हमारे घर आते थे तो नॉर्मली डिवाइन फ्रेग्रेंस विल अपीयर, मतलब कुछ चमत्कार होने वाला है।
बोला नॉर्मली गुरुजी बात करते हैं डिवाइन, देन सडनली गुरुजी विल डू लाइक दिस एंड मुट्ठी खोलते थे, बताशा, बर्फी, सम डिवाइन प्रसाद विल बी प्रोड्यूस्ड, देन समबडी विल पिक अप, गुरुजी विल वॉश द हैंड्स एंड वो प्रसाद बढ़ जाता था। एक बार क्या हुआ, गुरुजी के कुछ इंसिडेंट्स बताना चाहता हूँ, मिरेकल्स। एक बार क्या हुआ, वहाँ एक जलंधर में एक था बीडी स्टील, प्रमोद अग्रवाल जी। प्रमोद जी ने कहा यार मैं भी कैंटोनमेंट में रहता हूँ, गुरुजी का भी मंदिर कैंटोनमेंट में है, वो आते नहीं हमारे। मैंने कोशिश की, वो काजी साहब आप सुना, आप जाते हो वहाँ गुरुजी का मंदिर, सुना मैंने, ज़रा रिक्वेस्ट करो ना गुरुजी को कि हमारे घर में भी चरण डाले। मैंने कहा चलो, मैंने कहा गुरुजी चले वहाँ वो प्रमोद जी के घर में। बोला हाँ चलो, तेरी मर्जी तो चलेंगे। तो डे वॉज फिक्स्ड, वी वेंट टू अगेन, जैसे कहा ना मैंने, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक गए हम गुरुजी के, शाम को वहाँ गए थे, वही 2 गाड़ियाँ थी। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन गुरुजी ने ऐसा नहीं किया, फ्रेगनेंस भी हो गई, तो गुरुजी ने ऐसे किया, 6 गज सिल्क साड़ी गुरुजी क्रिएटेड। इट वॉज एन अमेजिंग मिरेकल वी सा। पर करके बोला ले अनीता आंटी, वो ना अनीता वर्मा, लिंडा अनीता, वो टोरंटो में थी, अब वो चले गए वापस बैक इन सदबरी। तो उसने अभी तो उसे प्रिजर्व किया, शी हैज प्रिजर्व दैट साड़ी वेरी वेल, अभी तक खुशबू आती है। तो गुरुजी का क्या था, नॉर्मली हम संडे को या तो हम घर में खाना खा के जाते थे मंदिर, 2-3 घंटा बैठते थे वही मंदिर में, या कभी हम वही प्रसाद लेते थे मंदिर में ही प्रसाद, जल्दी जाते थे मंदिर में ही प्रसाद लेते थे। उस दिन हम घर में खाना खा के गए, मंदिर गए, तो गुरुजी ने कहा इसको, वो हेमांटी प्रसाद ठेठ पंजाबी में गुरुजी बात करते थे। मैं बोलता गुरुजी मुझे आपकी बात समझ नहीं आती है, ये हेमा आंटी तो शी हैज रेड पंजाबी, लुधियाना में पढ़ी, इसको आती थी पूरी पंजाबी। बोला ले प्रसाद चखो। बोला गुरुजी भूख नहीं है, खाना खा के अभी आए हैं। अरे ले ना प्रसाद। बोला नहीं गुरुजी भूख नहीं है। तो भूख नहीं है तो तुम लोग कश्मीरी हो, तुम लोग कश्मीरी, तुम लोग चावल खाते हो, और जो चावल खाते हैं वो चुगली करते हैं। ले बोला गुरुजी भूख नहीं है, तो जल प्रसाद गुरुजी के भर, एंड विद इन 5 मिनट्स भूख भी लगी, पूरा शी कंज्यूम द खाना कंज्यूम किया। गुरुजी का क्या था मैं बताता हूँ, वी डोंट रियलाइज, महापुरुष शिव अवतार बोलते हैं हम, वो जैसे हमारी तरह आप बैठे हैं वैसे ही गुरुजी थे। मतलब ही वुड मेक अस डैम कंफर्टेबल, मतलब ऐसे डिवाइन प्रेजेंस in a very simple way and with great human values, that because that fascinated me। गुरुजी का क्या impression, great human values, ये हमें सीखना चाहिए। एक बार क्या हुआ, हम गए थे फगवाड़ा, गए गुरुजी के, बैठे कार में, सामने बैठे गुरु, हम बैठे 2-3 बैठे हम गुरुजी के चेले। तो इट वॉज एट हाईवे, जलंधर टू लुधियाना हाईवे में आता है। लेफ्ट में कहा गुरुजी ने रुको, इधर से चलो, एक मड्डी रोड थी हाईवे, अंदर से चलो लेन, आधा किलोमीटर हम घुस गए अंदर। पता नहीं गुरुजी मोजी थे क्या, रोका गाड़ी रोकी, गुरुजी ने दरवाजा खोला, निकल गए गुरुजी, किसी घर में चले गए। उन्होंने पता नहीं कहाँ गए, क्या गए, हम तो ऐसे ही बैठे हैं, क्या बताए। कभी 20-25 मिनट हम ऐसे ही बैठे, फिर देखा गुरुजी इज कमिंग नाउ, गुरुजी को आ रहे देखा, एंड अकम्पनीड बाय फैमिश्ड कपल, एक बुढ़ा बुढ़ी, मतलब apparently looked very this thing, famished couple। तो हम निकले, आई गुरुजी महाराज वगैरह, फिर वो बोल रहे थे, कपल सेट के हमें बड़ी इच्छा थी गुरुजी के दर्शन करने, पर यार हम लोग गरीब लोग हैं, वी कांट इवन गो टू द जलंधर मंदिर, कहाँ जाएं हम, ऐसा है, वी आर इन दिस थिंग। तो हम गुरुजी ने, हमारी बिगेस्ट डे ऑफ लाइफ हमारा है कि गुरुजी ने हमें दर्शन दे दिए। दिस इज सीख लेनी चाहिए, ह्यूमिलिटी, लव एंड कंपैशन। अब गुरुजी वॉज वेरी चार्मिंग पर्सन, वो भी बताता हूं मैं, पर बिफोर दैट एक बार गुरुजी को लुधियाना लेके गया। लुधियाना वहाँ पे हमने लंच भोजन था, वहाँ प्रसाद वसाद था, तो वहाँ उसने होस्ट था, उसने कहा काजी अंकल, मैंने कहा क्या बात, बोला हमारा नेबर है,
हार्ट ट्रबल ब्लॉक है, बहुत मुश्किल से गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, विद ग्रेट डिफिकल्टी यहाँ तक आया है, ज़रा गुरुजी को रिक्वेस्ट करो ब्लेसिंग देने। मैंने कहा गुरुजी ज़रा ब्लेसिंग दे दो। मैंने कहा बोलो जलंधर मंदिर आए मेरे पास। तो मैंने कहा गुरुजी बड़ा मुश्किल से यहाँ तक आया, बड़ा मुश्किल से यहाँ तक आया। तो उसने गुरुजी ने बुलाया, ऐसे जल प्रसाद दिया, ही वॉज मिनट्स, ही वॉज ऑल राइट। नेक्स्ट डे ही वेंट टू जलंधर मंदिर गुरुजी के पास। मतलब ये भी मैंने मिरेकल देखा। एंड अगेन कमिंग टू द चार्मिंग पार्ट ऑफ गुरुजी, स्माइलिंग एंड चार्मिंग पार्ट। एक बार मैं दफ्तर में बैठा हूँ, अराउंड 10-11 साढ़े 11 बजे जेंटलमैन के, बड़ा गुरुजी आपको याद करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, जलंधर छोटी जगह है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में था वहाँ गुरुजी का आश्रम भी, हार्डली 1-1.5 किलोमीटर। तो मैं गया गुरुजी के आश्रम में। जैसे सबको पता है गुरुजी का जो मेन मंदिर था, हॉल, सेकेंडली देयर वर 2 रूम्स। बैक रूम वॉज गुरुजीज बेडरूम, उससे पहले था, उसको बोलते थे ऑपरेशन थिएटर। तो वहाँ आते थे वो कहते ट्रीटमेंट रूम, पान के पत्ते लगाओ या वो चम्मच से इलाज करते थे गुरुजी। एक्चुअली दैट वाज टू रेस्टोर द फेथ। ये था गुरुजी ग्रेस एंड ब्लेसिंग ही होती थी वो। तो मैं गया वहाँ, ऑपरेशन थिएटर खोला मैंने। तो आओ काजी अंकल, गुरुजी ने कहा, तू कहता ना यहाँ खाली अमीर लोग आते हैं, तो कहता ना यहाँ खाली अमीर लोग आते हैं, अब कहाँ बता अपनी कहानी। तो बेचारा था, बोला सर मैं सब्जी वाले का बेटा हूँ, मेरा पिताजी सब्जी बेचता है चंडीगढ़ में, तो मैं ड्राइविंग करता हूँ, तो मुझे हार्ट का टोटल ब्लॉकेड हुआ था, पीजीआई वगैरह। जब सबने दे लेफ्ट मी, तेरा बड़ा महंगा इलाज है, तेरा इलाज कैसे होगा, दे लेफ्ट मी। तो ऐसे भटक पे गुरुजी ने मुझे अपनी, ही गेव मी अ न्यू लाइफ, मुझ में जान डाली, अब मैं नॉर्मल हूँ। तो मैं हर 6 महीने में एक बार गुरुजी के पास आता हूँ, वही पान के पत्ते लेकर। मैं चंडीगढ़ से जलंधर जाता हूँ 1 से 6 मंथ्स, गुरुजी मेरा एक पान के पत्ते खरीदे। फिर बोले गुरुजी, अब ये बोलता है मेरी शादी कर लो। अरे मैंने बोला गुरुजी ने शादी नहीं की, तू कैसे शादी करेगा। दैट वाज गुरुजीज ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, पर तो बहुत आई हैव सीन द काइंड फेस ऑफ गुरुजी, हर एक हेल्प करता था। एंड ऐसे भी था, कोई लोग गुरुजी की बात नहीं मानते थे, दे वुड टेक इट ईजी। हमें जैसे जल्दी मिलता है ना, ईजी मिल जाता है कोई बात, बोला चलो कदर नहीं जानते थे। मैं उनकी फिर क्या हालत वो भी मुझे पता है। मतलब गुरुजी बस ये हमारी सीख है, पर्पस टू हेल्प एवरीबडी, जितना हमसे हो सके हम किसी का हमेशा हेल्प करना चाहिए। अच्छा, फिर हमने गुरुजी को 93 में हम गुरुजी को लेके गए थे दिल्ली। इट वॉज मेरा लुधियाना का मित्र, उसकी गाड़ी थी, तो हम दिल्ली में गए। 4 सैनिक फॉर्म, ज्ञान विजयेश्वर जी का बंगला था, उसमें हमने अरेंजमेंट किया था। फिर बहुत घूमे गुरुजी, बहुत मिलाया लोगों से वगैरह वगैरह। बल्कि एक VN गार्गिल वॉज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उसको मैं पर्सनली जानता था। गुरुजी ने उसने ही वेलकम्ड गुरुजी एंड ही प्रेजेंटेड। उसके पिताजी थे एन गार्गिल, नरहरी गार्गिल, ही वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब एंड ही ट्रांसलेटेड जपजी साहब इनटू इंग्लिश। तो ही प्रेजेंट हिम दैट बुक जपजी साहब इनटू इंग्लिश, वो गुरुजी को दे दी। ऐसे भी NKB सालवे वगैरह से मिला है। अब ये अजीब बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो गुरुजी थे, बोला ए काजी अंकल मुझे चंद्र स्वामी से मिलाओ। तो मैंने कहा गुरुजी आप इतने महापुरुष हो, ग्रेट्स हो। अब वो उसका बोला बाला था, PV नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर, और उसका गुरु था चंद्र स्वामी। वो VVIPs यूज्ड टू गो देयर। अब क्या था, वो भी मुझे थोड़ा रेस्पेक्ट करता था, वो यूज्ड टू अटेंड सेमिनार ऑन तंत्रा वगैरह, मेरे को थोड़ा सा वो रेस्पेक्ट करता था। मैंने कहा साहब आप क्यों मिलेंगे। बोले गुरुजी ठेठ पंजाबी, हरकत करो तो बरकत, जो मैंने बोला वो करो, मतलब मिला। तो मैं वहाँ गया स्वामी जी के आश्रम में। मैंने कहा स्वामी जी एक बड़ा सिद्ध पुरुष है, आए हैं हम जलंधर से, मैं आया हूँ सिद्ध पुरुष को लेकर, बड़े मैं चाहता हूँ कि यहाँ उनकी स्वागत हो। वो बड़ा उसका स्टाइल था चंद्र स्वामी का, आप कहते हो तो कोई बात होगी, उनका स्वागत है। तो फिर मैंने अरेंजमेंट किया, तो उन्हें अलग कमरा रखा, फिर गुरुजी को लेके आया, बड़ा मिठाई फ्रूट अलग कमरे में। फिर वो आया, वो चंद्र स्वामी जी थे बैठे। 6 मिनट हो गए, बोला उठ गुरुजी मुझे बोलता है, पता नहीं क्या बात है।
मैं खड़ा होके गया तो निकल गया मैं गुरुजी के साथ। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे 3-4 बार बोला मिलने के लिए, अब निकल गया ऐसे ही? बोला काजी अंकल तेरे को नहीं पता है? मैंने कहा क्या बोल, बोले इसके चेहरे पर डाउनफॉल लिखा हुआ है। क्या पता है क्या, हाउ कैन आई रिएक्ट? एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड आफ्टर 1 month। राजेश पायलट वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर अफेयर्स, उसने उसको केस लगा के जेल में बंद कर दिया था। सच ए पावरफुल पर्सन। और मैंने सुना फिर ऑफकोर्स उनको शर्म आ गई थी, विदाउट माई नॉलेज दी मस्ट आई गॉन टू गुरुजी फॉर ब्लेसिंग, मीन जल्दी छूट जाए जेल से। ये भी मैंने एक बड़ा चमत्कार देखा। फिर इसके बाद 95 में एस ब्लॉक GK 1 में एक गुरुजी बेसमेंट थी, बेसमेंट में शिफ्ट हो गए। तो वो हमारा दैट वाज हिज फर्स्ट फॉर्मल जर्नी टू दिल्ली। बड़ा आनंद आया, बहुत लोग मिले। देन ही वेंट टू अमृतसर एंड देन गुरुजी देन वेंट टू एम्पायर एस्टेट। मैं और बोलूँ कि लंबा कहानी? आप बोले वो लंगर शुरू करवा दें। अच्छा हाँ करवा दीजिए ना, वो बेटर लंगर तो बहुत बढ़िया है। और विथ योर इंस्ट्रक्शंस। नहीं आप तो बोलो। अच्छा 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 आपको सुनना है। अच्छा 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 अच्छा। बल्कि व्हाट इज वेरी स्ट्रेंज, मैंने क्या देखा, हमें पता भी नहीं, मुझे नहीं पता है गुरुजी का। मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ गुरुजी की, जो दिल्ली में तो बहुत लंबी सत्संग है, लंबी जर्नी है गुरुजी की, चमत्कार है, अभी भी चमत्कार होते हैं। पर मुझे कुछ खुद को मालूम नहीं है गुरुजी के कहाँ कहाँ गुरुजी का ग्लोरी फैला हुआ था। ये लास्ट ईयर की ही बात है। मेरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था शंकराचार्य जी ने दिल्ली में। तो वहाँ एक बड़े स्पिरिचुअल आदमी कॉल डिवाइन कर्नल किनी, ही वॉज अटेंड टू मी माई लेक्चर वगैरह और मेडिटेशन। फिर वो मेरे घर आए, बोला आई एम वेरी हैप्पी वगैरह। उससे मेरा फोटो वगैरह उठा के, वो आते थे ना फेसबुक पे डालते हैं, सोशल मीडिया, मेरा फेसबुक के साथ फोटो डाला उसने। फिर मुझे गुरु संगत के फ़ोन आने लगे, बोले अरे काजी अंकल। मैंने कहा क्या बात है? बोला अरे आपके साथ वो डिवाइन कर्नल का फोटो देखा फेसबुक में। मैंने कहा हाँ वो आए थे हमारे घर। बोला ना अरे वो हमको हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैंने कहा आपका क्या काम है डिवाइन अंकल के साथ? बोला आपको नहीं पता है। मैंने कहा क्या? बोला जब गुरुजी लेफ्ट दिस फिजिकल बॉडी तो फिर हम उसके पास जाते थे, ये पावर। मैंने कहा बोला हाँ गुरुजी ने इसको ब्लेस किया था। मैंने कहा मुझे पता नहीं कुछ भी। तो मैंने फिर उसको कहा डिवाइन अंकल को, कर्नल किनी को, मैंने कहा किनी साहब आप लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठाते? बोला जो मुझे उसी चीज़ है, काली वक्त बेसिकली। बोला जो माँ बोल रही है उसी का मैं फ़ोन उठाता हूँ। फिर मैंने कहा आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है? मुझसे हंसा, बोला कैसे मालूम है आपको? मैंने कहा यार संगत को फ़ोन नहीं उठाते हो। मैंने बताओ। फिर उसने कहानी सुनाई, हाउ गुरुजी ब्लेस्ड डिवाइन कर्नल। तो हमें पता नहीं था। वो बोला कि मैं मेजर था आर्मी में, तो उसको हिंदी आती नहीं थी, बेसिकली उसको कन्नड़ा लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। बोला मेरा कुलीग था, बोला एक डिवाइन सेंट इज देयर इन जालंधर एम्पायर स्टेट, आई विल टेक यू टू डिवाइन सेंट। बोला मैं अपना कुलीग के साथ, वो भी मेजर था, मैं भी मेजर था उस टाइम, गया वहाँ, लेट पहुँचे, लंगर प्रसाद किया मैंने। तो सब ले फिर वो निकल रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। तो मैंने भी दूर से प्रणाम किया। उसने कहा आओ अंकल। बोला क्या नाम है तेरा? बोला मैं आई एम मेजर किनी। बोला किनी 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 किनी, वो गुरुजी ने कहा उसको। कैसे वो ब्लेसिंग का तरीका गुरुजी का। बोला किनी 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 किनी, ऐसे हंसा। गुरुजी ने भी, उसने भी हंसा। बोला द मोमेंट ही वेंट बैक, उसने देखा उसकी ड्राइवर वॉज मिसिंग, गाड़ी नहीं थी उसके पास, वो चला गया था कहीं। तो फिर वो परेशान हो गया। फिर उसने कहा चलो मेरे पास ही रहो रात को। उसके कुली के घर में रहा। नेक्स्ट डे डिफरेंट कार केम। जब डिफरेंट कार के उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था ड्राइवर के पास। बोला अरे तुम इसको कैसे जानते? बोला हम उसके पास जाते हैं, गुरुजी हमारा ये गुरुजी है वगैरह। सो दैट वाज ए हाउ ही गॉट अट्रैक्शन टुवर्ड्स गुरुजी। अच्छा, एम्पायर एस्टेट में क्या मल्टीपल सत्संग्स, एंड गुरुजी वाज सच ए काइंड पर्सन, सच ए ग्रेट पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग। महाअवतार थे, दूसरे का दुख अपने ऊपर लेते थे। एक बार और उनका भी कल्याण करते थे, जो गुरुजी को नहीं मानते थे उनको भी ब्लेस करते थे। दैट इज ए
ग्रेट डिवाइन सोल का क्या है, ये सबका गुरु है, वो सबका भी है, इसलिए हम शिव अवतार कहते हैं गुरु जी को। उनको भी ब्लेस करो। कहते हैं देयर इज अ यंग कपल गोइंग टू गुरु जी रेगुलरली। अब उसका पिताजी हैड नो इंटरेस्ट इन गुरु जी। एक बार उसको जबरदस्ती बाप को भी लेके गए गुरु जी के पास। जब वो निकले वहां से, प्रणाम किया गुरु जी को, कपल प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द गुरु जी, निकल गए। अंकल दूसरे से नमस्ते कर रहा है दूर से गुरु जी को, बोला अरे अंकल इधर आओ। गुरु जी ने कहा उसको, तो ही वेंट देयर अंकल, बोला की हाल है, ही वाज लिटिल सिनिक, बोला क्या हाल है गुरु जी, बुढ़ापा काट रहे हैं। ऐसा आप क्या जिंदगी काट रहे हैं, देखो घुटनों में भी दर्द है गुरु जी, बुढ़ापा काट रहे हैं। बोलता इधर बैठो, बिठाया। गुरु जी उसके घुटने पर टैप्ड हिज घुटना एंड हिज ओन घुटना। तो विद इन फ्यू मिनट्स बोला अरे गुरुजी आप तो महान हो, मेरा पेन ठीक हो गया। नहीं मैं आना चाहिए था, बहुत घर मैं हमेशा आऊँगा। गुरुजी आप बहुत ग्रेट हो, आप बहुत महान हो, ये हो वो हो। हंस हंस के निकला। बच्चों को बोला हाँ मैं आऊँगा ज़रूर, एक करके वो चला गया। वो चला गया। फिर गुरुजी ने कहा डॉक्टर अंकल चलो मुझे मेरे मालिश करो मैं घुटनों को। समझे दिस, ये सबकी सीख है, गुरु जी की सीख है, से सीख लेनी चाहिए हमें। और आंटी अभी ने कहा कि प्रसाद क्या है ना, ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना चाहिए, विद इन लिमिट्स। एंड आवर बेसिक ट्रेडिशन वाज कि प्रसाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मंत्रों में लिखा होता है, कहते खाओ मन भर छोड़ो नहीं 3 बार। भले एक मन खाओ मगर एक दाना नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ डिवाइन एनर्जी। कि गुरु जी यूज्ड टू फोर्स इट मेटिकुलसली दैट टाइम ऑल्सो। तो सबको ये पता नहीं, आपको संगत सत्संग पता है कि नहीं, ये शरद पवार जी गए गुरु जी के पास विथ हिज पीए। जब शरद पवार जी गए नो, ही हैड अ कंप्लीट फेशियल पैरालिसिस, सबको पता है। व्हेन ही वेंट टू गुरु जी को तो चाय दे दी गुरु जी ने, चाय प्रसाद लिया तो नीचे थोड़ी काली वाली होगी चाय, तो ही डिडंट लाइक, इसने अपने पीए को पास ऑन किया शरद पवार ने, उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो आफ्टर सम टाइम तो उसका 50% पैरालिसिस ठीक हो गया। बोला अरे ग्रेट, बड़ा अच्छा, बड़ा ये हो गया। नो आई शुड गेट अगेन मीट गुरु जी, कंप्लीट क्योर होना चाहिए। फिर वो कुछ देर के बाद गए गुरु जी के पास। बोला गुरु जी ने कहा तूने आधा ही प्रसाद लिया तो आधा ठीक हो गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अभी खाना भी अगर यू डोंट फील लाइक ईटिंग फुल, उठाओ कृपा करके, जितना आप रखोगे टोटली यू मस्ट कंज्यूम फुल्ली एंड फुल टोटल विथ टोटल लव एंड डिवोशन यू मस्ट कंज्यूम द डिवाइन प्रसाद। तो मैं सत्संग लंबा चलेगा, तो मैं एंड लेट मी कंक्लूड, यू नो एवरीबडी शुड रियलाइज गुरु जी विद डायरेक्ट कनेक्शन। गुरु जी और आप हैं, मेडिटेट ऑन गुरु जी एंड यू विल सी द मिरेकल्स। आई कैन टेल यू, आंख बंद करके गुरु जी पर ही मेडिटेट करो, मंत्र जाप करो, कुछ यू विल सी आप miracles will happen, I can assure you that. And जितना गुरु जी का सीख था, I will say that let humility, love and compassion should be your nature. आपका स्वभाव ही बनना चाहिए। नम्रता हर एक के लिए, हर एक उसी का रूप है, रब का रूप है। एंड कंपैशन, दया भावना। एंड गुरु जी would always say, कम अच्छा ड्रेस पहन के आ जाओ, कम ये नहीं, और अपने मतलब शाम को आ जाओ, पति की सेवा करके आ जाओ, बच्चों को खिला के आ जाओ। समझे ना मेरे बात आप? एंड लीड ए कंप्लीट लाइफ। देयर इज नो नीड ऑफ इग्नोरिंग योर सेल्फ ऑल्सो। अपना ख्याल भी रखो, दवाई खानी तो दवाई खाओ। समझे ना मेरी बात? दैट्स व्हाई से यू मस्ट हैव कंक्लूडिंग, जो हम करेंगे वो जो गुरु जी करेगा। प्लीज रिमेंबर, हम वी आर वरीड अबाउट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अगर गुरु जी पर छोड़ देंगे, कल भी अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा। प्लीज रिमेंबर, जिंदगी में कुछ बाधाएं आएंगी, गुरु जी इसका निवारण करेगा। अगर हम अपने ऊपर छोड़ेंगे फिर क्या होगा? कहते हैं कि पुराना गाना है कि हम मूर्ख जो काम बिगाड़े, हम मूर्ख जो काम बिगाड़े, रामो काज बनाए रे। हम तो काम बिगाड़ेंगे बिगाड़े, गुरु जी पर छोड़ेंगे तो काम चंगा हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी वंडरफुल। जय गुरु जी। जय